صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 12 دسمبر 2020 ہے اور ہم تقریب نکاح میں جمع ہیں۔ یہ کائنات بنی نکاح کی وجہ سے، کائنات ختم ہوگی نکاح چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب یہ کائنات بنی تو دو افراد کا جو آپس میں ریلیشن اور تعلق اور رشتہ بنا ہے، ان دو افراد کے نام نامی اور اس میں گرامی حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام ہے۔ ان کا آپس میں رشتہ نکاح ہے، ان کا آپس میں تعلق خاوند بیوی کا سا ہے، اور جب یہ کائنات ختم ہوگی اللہ اس سے نکاح کو اٹھا لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ پاک مسلمانوں کی وفات کرا دیں گے، اس دھرتی پر کوئی مسلمان نہیں بچے گا، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ کا یہ منظر ہوگا کہ اس دھرتی پہ کوئی اللہ کو پکارنے والا نہیں ملے گا۔ جو قیامت کے حوادث اور ہولناک مناظر ہیں وہ کسی مسلم آنکھ نے نہیں دیکھنے، ان کی حوادث کی آوازوں کو کسی مسلم کان نے نہیں سننا۔ یہ قیامت کفار پہ آئے گی تو پتہ چلا کفار کے ہاں نکاح نہیں ہے۔ جب نکاح کی عظمت ختم ہوگی تو قیامت آ جائے گی۔ میری بات کا مطلب کائنات شروع ہوئی ہے، پہلا رشتہ نکاح ہے، کائنات ختم ہوگی جب نکاح ختم ہوگا۔ یہ نکاح جہاں ثبوت نسب ہے، یہ نکاح جہاں ثبوت ولادت ہے، یہ نکاح جہاں ثبوت شرافت ہے، وہاں یہ نکاح ثبوت کائنات ہے، وجود کائنات ہے۔ اس وجہ سے کائنات میں اللہ نے رنگ بھرے ہیں۔ میرے دوستو، جو بندہ قدرت اور طاقت کے باوجود نکاح نہیں کرتا، ایسے آدمی کو امت محمدیہ کے ہونے پر منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، خود نکاح کیے ہیں، اپنی 4 بچیوں کے نکاح فرمائے ہیں۔ حضور پاک کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہوئے، نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، لیکن جن کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا، حضرت زید بن حارثہ، اس بیٹے کی شادی خود کرائی ہے۔ حضور پاک نے اپنے نکاح 11 نکاح فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے نکاحوں کو پڑھا ہے اور نکاح کی عظمتیں اور برکتیں بتائی ہیں۔ میں تقریب نکاح کے حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میرے والد بھی آپ ہیں، میرے نبی بھی آپ ہیں، میرے بڑے بھی آپ ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں شادی کس طرح کروں۔ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا ہے، ڈی خان کے غیور مسلمانوں، وہ صرف حضرت ابو ہریرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں ہر امت محمدیہ کے فرد اس کے لیے سبق دیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، ابو ہریرہ، دنیا میں 4 قسم کی شادیاں ہوتی ہیں، میں تمہیں 4 شادیاں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنا مشورہ بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، وہ 4 قسم کی شادیاں کون سی ہیں؟ حضور اقدس نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، لدینها۔ لوگ شادی کرتے ہیں مال و دولت کو دیکھ کر، لوگ شادی کرتے ہیں حسن و جمال کو دیکھ کر، لوگ شادی کرتے ہیں نسب کمال و خاندان کو دیکھ کر، لوگ شادی کرتے ہیں
किसी के दीन को देखकर ये 4 किस्म की शादियां हैं। या हुस्न पे फरेफ्ता हुआ, शादी कर ली, माल का लालची हुआ, शादी कर ली, खानदान का बड़ा होना देखा, शादी कर ली, या दीनदारी देखी, शादी कर ली। जब ये बात हुजूर ने फरमाई, कदरे खामोश हुए। हज़रत अबू हुरैरा ने सर उठाया और रसूल अक़दस की खिदमत में आंखों से सवाल की जुरत की, कहा या रसूल अल्लाह, अब आपके इस सहाबी, अब आपके इस शागिर्द, अब मेरे मुझ जैसे खादिम को आप क्या तजवीज़ और रिकमेंड फरमाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन। अबू हुरैरा चाहता है शादी भी हो, कामयाब भी हो, तो पहले दीनदारी देखना, रब कामयाब कर देगा। इस हदीस पाक से समझ आया, माल को देखना जुर्म नहीं है, हुस्न जमाल को देखना जुर्म नहीं है, नस्बो कमाल को देखना जुर्म नहीं है, लेकिन पहले दीन को देखना चाहिए। हाँ, दीनदारी के साथ मालो दौलत भी हो, जाहो जलाल भी हो, नस्बो कमाल भी हो, और इसी तरह हुस्न जमाल भी हो, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले दीनदारी होनी चाहिए। मैं अगरचे हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ साहब से उम्र में छोटा हो, लेकिन मेरे साथ मेरे नाम में लफ्ज़ मुफ्ती लगा हुआ है। हज़रत कारी साहब के सामने की बातें हैं, कई बार हम इकट्ठे हुए हैं, शादी ब्याह में भी और तलाक के मामलों में भी। अल्लाह पाक हर मुसलमान की बेटी का घर बसाए, लेकिन जितने घर उजड़े हैं, मैं रब को गवाह बना के कहता हूँ, बुनियादी वजह लोगों की जाब देखी जाती है, बुनियादी वजह लड़के की जाब और नौकरी पर नज़र है या लड़की के माल पे नज़र है, दीनदारी पे नज़र नहीं होती। अगर दीनदारी पे नज़र होती है, वो शादी तोड़ चढ़ जाती है। मैंने नहीं देखा कि किसी जगह मुझे डिवोर्स पेपर पे एज ए मुफ्ती साइन करने पड़े हो और उसकी वजह दीनदारी हो, मैंने नहीं देखा। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं बहनें बेटियां बीवियां रखने वाला हो। मेरे दोस्तों, मैं तो दुआ दूंगा, रब हर मुसलमान की बेटी का अच्छा नसीब फरमाए, हर मुसलमान के बेटे का अच्छा नसीब फरमाए। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूँ, अल्लाह के लिए शादी के ऊपर जहां आप दूसरे की जाब के बारे में पूछते हैं, शादी के लिए खानदान के बारे में पूछते हैं, शादी के लिए आप उसका थाने का रिकॉर्ड भी मालूम कर लेते हैं, वहां दीनी रिकॉर्ड भी मालूम कर लिया करें। ये बात याद रखें, जो रब से डरता है वो अल्लाह से डरता है, वो हुकूक देता है, हुकूक गस्ब नहीं करता। हुकूक का गासिब वो है जो बंदा अल्लाह से डरता नहीं है। कुरान करीम की आयतें, 2 आयत पेश कर रहा हूँ। एक आयत सूरत अर्रहमान की है, पारा नंबर 27 है। एक आयत सूरत नाज़िआत की है, पारा नंबर 30 है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, क़यामत में एक खुशकिस्मत आएगा, मैं उसे 1 नहीं 2 जन्नतें दूंगा। पूछा गया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाइए, जिसे 2 जन्नतों का मालिक बनाएंगे वो खुशकिस्मत कौन होगा? अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, का जो बंदा कभी गुनाह करने लगे और इसके दिल में ख्याल आए, ओए बंदिया क्या गुनाह कर रहा, रब को क्या मुंह दिखाएगा, कब्र तन्हा की आनी है और इसने गुनाह छोड़ दिया, ये वो खुशकिस्मत है जिसे मैं अल्लाह 2 जन्नतों का वारिस बनाऊंगा। और दूसरी जगह सूरत नाज़िआत में फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जन्नत उस खुशकिस्मत के लिए ऐलान हो चुकी है जो गुनाह करते वक्त रब की बात सोच के गुनाह को छोड़ दे। मेरे दोस्तों, वो हुकूक नहीं खाएगा जो दीनदार होगा, अल्लाह की कसम नहीं खाएगा, उसे रब का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा। और जो अल्लाह का खौफ रखता है, इसे नजर नहीं आ रहा मुझे अल्लाह देख रहा, अल्लाह तो देख रहा, तो जब वो उसका खौफ रखता है, वो अपने ससुर का भी हया करेगा, अपनी सास का भी हया करेगा, अपने बाप का भी हया करेगा, अपनी माँ का भी हया करेगा, औलाद का भी करेगा, अज़वाज का भी करेगा। पहले हमें दीन देखना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनके दोनों तरफ के वालिदैन को भी और इन 2 बच्चों को भी
जिन्होंने कुरान करीम भी पढ़ा है और आदाब भी सीखे हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़िंदगी भी अच्छी रखी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनका फ्यूचर भी अच्छा बना दे। मेरे दोस्तों, निकाह के बारे में चंद बातें मज़ीद भी समझिए। इस्लाम में शादी बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमने मुश्किल बनाई है, इस्लाम में मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिगर देता हूँ, आप दिल की तख्ती पर लिख लें। 6 चीज़ें इस्लाम में शादी के अंदर हैं। शादी में 6 चीज़ें हैं। 7वीं चीज़ शादी में इस्लामी तौर पे शामिल नहीं है। शादी के 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। 2 जमा 1 3, 3 जमा 3 6। ये 6 चीज़ें हैं जो 2 फ़र्ज़ हैं जिसके बगैर निकाह नहीं होता। पहला फ़र्ज़ ईजाब व कबूल है, दूसरा फ़र्ज़ 2 मुसलमान गवाह हैं। ईजाब व कबूल का माना ऑफर और एक्सेप्ट। इन्होंने बच्ची दी, उन्होंने ली, इसे ईजाब व कबूल कहते हैं। इसके बगैर निकाह नहीं होता। नंबर 2, कम अज कम 2 मुसलमान गवाहों, इसके बगैर निकाह नहीं होता। ये फर्ज है। एक चीज वाजिब है जिसे हक महर कहते हैं। कुरान करीम पारा नंबर 22 सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब रब्ब कायनात फरमाते हैं, क़द अलिमना मा फरज़ना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। हमने हक महर मुकर्रर किया है, ये बीवियों को खावन देंगे। वो कितना है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला महरा ले अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम। फरमाया जो चांदी के 10 दिरहम हैं उससे कम में हक महर नहीं बनता। मौजूदा दौर में चांदी के 10 दिरहमों की कीमत कम अज कम पाकिस्तानी सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक 5000 रुपए है। इससे बढ़ के तो रखें, इससे कम न रखें। लेकिन बास लोग समझते हैं सिर्फ 5 ही देंगे, इससे बढ़ के वो समझते हैं देना जुर्म है। जी नहीं, कुरान करीम ने सिर्फ इसकी बात नहीं की बल्कि फरमाया व आतैतुम इहदाहुन्न क़िंतारा। ये 4थे पारे का आखिरी सफ़ा है। रब फरमाते हैं हक महर में बीवी को तुम सोने का खजाना भी दे सकते हो। इससे पता चला इससे कम नहीं रखना, बढ़ के इससे ज्यादा जितना रखना चाहे रख लें। ये वाजिब है, ये एक ही वाजिब है निकाह में। अगर ये वाजिब न हुआ निकाह हो जाएगा, लेकिन बंदे पर इसकी अदायगी लाजिम रहेगी। अल्लाह न करे किसी बंदे ने हक महर अदा न की और वो दुनिया से चला गया। अल्लाह फरमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। रब ने मीरास का हुक्म दिया है कि माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, बहन का हिस्सा, भाई का हिस्सा। वही रब फरमाते हैं मिन बादी वसिय्यति यूसी बिहा औ दैन। फरमाया पहले हक महर निकाला जाएगा विरासत से, माँ का हिस्सा बाद में, बाप का हिस्सा बाद में, बहनों भाई का हिस्सा बाद में, औलाद का हिस्सा बाद में। पहले बीवी के लिए हक महर लिया जाएगा, उसे अदा किया जाएगा। यूसी बिहा औ दैन, ये इस पर कर्जा है, ये देना पड़ेगा, ये हक महर है। आजकल लोग हक महर माफ कराते हैं, ये जुल्म है। बीवी को पता ही नहीं होता मेरा हक महर है कितना, न हाथ में दिया, न बताया, न अदा किया। अजी माफ कर दे जी, माफ हो गया। यूं माफ नहीं होता। आप हक महर उठाएं, उसके हाथ में रखें, उसे बताएं इसकी स्याह सफेद की तू मालिक है, तू बेच दे, तू काले चोर को दे, किसे सदका कर दे, अपने पास रख, ये तेरा है। वो फिर लौटा दे तब लौटता है, वरना माफ नहीं होता। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौली साहब सियाने बंदे वे इवें करे सो ते वालू डेवणे। तो मैंने कहा क्यों दूसरे का हक खाते हैं, क्यों खाते हैं? हुकूक नहीं खाने चाहिए। और मेरे दोस्तों ये एक वाजिब है। फिर 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सुन्नत खुतबा निकाह है जो अभी पढ़ा जाएगा। खुतबा निकाह ये सुन्नत है, इसके बगैर निकाह हो जाता है लेकिन सुन्नत रह जाती है। नंबर 2 सुन्नत, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने छुआरे पड़े होते, हुजूर अलैहिस्सलाम इन छुआरों को उठाकर यूं प्यार से आराम से लोगों के ऊपर फेंक देते कि जिसे जो मिले वो ले लो। नंबर 3 सुन्नत दावत वलीमा है। ये दावत वलीमा ये सुन्नत रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये 3 सुन्नतें। छठी चीज के अलावा 7वीं चीज शादी में नहीं है।
ہم لوگوں نے مشکل کیا ہے، آج مہندی ہے، آج مہندی ہے، آپ مایوں ہے، یہ آگا ہے، اور پتہ نہیں یہ لینا دینا، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، غیر مسلمانہ رسمیں ہیں۔ اسلام نہیں کہتا، ایمان نہیں کہتا، مذہب نہیں کہتا، دین نہیں کہتا، شریعت نہیں کہتی، یہ ہمارے پیٹ سے بنی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، بہت آسان نکاح ہے۔ اور میرے دوستو، یہ کائنات شروع ہوئی تو نکاح سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حق مہر اماں حوا کا دیا تھا۔ اس وقت نوٹ نہیں بنے تھے، سونے چاندی کے زیورات نہیں بنے تھے۔ ہمارے والد مکرم حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری اماں جان حضرت آمنہ کو حق مہر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے بڑی کتب میں اس کا ریفرنس تلاش کیا، مجھے ایک جگہ ملا ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا حوالہ لکھ کر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حق مہر کیسے دینا پڑا؟ اللہ کے نے فرمایا، آدم اپنی بیوی کے لیے حق مہر یہ ہے، تم آخری نبی جو آئیں گے تمہاری اولاد سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر 10 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو حق مہر تو وہاں بھی چلا تھا، وہاں تو کچھ نہیں تھا نا، تو یوں ہوا تھا۔ اب سب کچھ ہے تو دینا پڑے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے، ان نکاح کو قبول بھی فرمائے، اور ہمیں رسم اور رواج سے اللہ بچنے کی اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔